Hello and welcome. Welcome to the daily Nifty and Bank Nifty Insights with NJ. Friends, आज है 13 January and we'll be estimating the probable moves, resistance and support levels, buying and selling zones along with trading plan for the next trading day, which is on 14th January. Now, 14th January is a very special day as it is a Thursday. And Thursday, being the weekly expiry day, you might see some volatility in the market, right? In Nifty as well as Bank Nifty. Before we start the analysis, let's look at how many of you haven't yet subscribed to our YouTube channel, right? So my invitation to you is to subscribe to this YouTube channel and also press the bell icon so that I keep on continuously sending you or creating such videos for enhancing your knowledge and enhancing your trading experience, right? We have got hundreds of videos here, friends, which can be used for learning and enhancing your trading skills, right? And there are more videos coming up in investing as well, right? Including the series of fundamental analysis soon. So yeah, be generous to share the videos with your friends and trading communities such that they can also be benefited from the quality knowledge. Now let's go to the daily chart of Nifty and Bank Nifty, friends. As expected, Nifty had uh, a bullish bias. So was, of course, the Nifty as well. Looking at yesterday's PCR, we had estimated that Bank Nifty would be, with a mild bullish bias, while as Nifty will be with a bullish bias as the, PCR was continuously going up. So today, both open gap up and started with a profit booking, right? If you look at the charts in a smaller time frames, you would see that as I've been saying that at a higher levels, the market is witnessing the profit booking, especially the DIs, right? And you could see that whenever there is a gap up, the market starts with profit booking and it goes to the lower levels, and at lower levels, then the buying interest emerges, right? So that's possibly more of FIIs which start buying at these levels, as the FIIs are the net buyers. So the market as of now is sell on rise and buy इन डिप्स. तो हमने जो ये लेवल दिए थे फ्रेंड्स, वो काफी यूजफुल रहे आज, और लोगों ने उसमें, हमारे जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा पैसा भी बनाया है यहाँ पे, राइट? ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ फ्रेंड आज पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते, न्यूट्रल रही. 26 stocks advance and 24 declined from Nifty 50. Broader market अगर देखें, Nifty large cap was slightly in red, while as mid cap and small caps were slightly in positive, more or less, except mid cap which rose by 0.67%. बाकी दोनों small and large cap flat थे, right? So top contributor Mahindra, SBI, Adani Ports, IOC, NTPC थे, while as the top losers थे Bajaj Finance, Shree Cement, SDFC, UPL and Bajaj Finserv. So overall, जब ये निफ्टी स्टार्ट हुई थी with a 76 points gain, but it lost most of the gains it had, in the first half, in the morning itself, right? It closed with a 1 point gain at 14,565 today. Bank Nifty ने opening gain 207 points का लिया था, but it further gained a little and 237 या 236 पॉइंट्स के गेन के साथ बैंक निफ्टी क्लोज हुई 32,575 पे, राइट? अगर हम कैंडलस्टिक पर्सपेक्टिव से देखें या पैटर्न के पर्सपेक्टिव से देखें या ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें, तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ मेड हायर हाई एंड हायर लो. सो अप ट्रेंड कंटिन्यूज, एंड आज बैंक निफ्टी ने जो इसकी आउट कैंडल कंसोलिडेशन रेंज थी वो भी तोड़ दी है. एंड अनदर थिंग व्हिच हैपेंड टुडे, जो कि 32,613 का इसका ऑल टाइम हाई था बैंक निफ्टी का. न सिर्फ वो आज इसने इनफैक्ट टच किया, बट इट ऑल्सो ब्रीच्ड दैट क्लियरली, राइट? सो इट मेड अ डेज हाई 32,680 का, जो कि मोर और लेस around 65 points ऊपर है, right? So that's good news. So bank nifty as long as goes up, निफ्टी को भी काफी सपोर्ट मिलेगा ऊपर जाने में इससे, राइट? तो अभी निफ्टी के पास में उतने बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स तो नहीं जितने बैंक निफ्टी इसको पॉसिबली जो सपोर्ट दे सकती है, बिकॉज लॉट मेनी बैंक्स आर स्टिल 30-35% बिलो देन देयर प्री कोविड लेवल्स. सो जब वो बैंक में बाइंग स्टार्ट होगी या एनबीएफसीज में बाइंग होगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट निफ्टी में भी देखने को हमको मिलेगा. नाउ
अगर हम सपोर्ट लेवल देखना चाहें निफ्टी में, तो निफ्टी का जो हमारा पहला लेवल सपोर्ट है 14,525 पे है, सेकंड सपोर्ट है 14,470 पे, थर्ड लेवल ऑफ सपोर्ट है हमारा 14,436 पे। अगर 436 का लेवल टूटता है फ्रेंड्स, इन दैट केस 14,383 हमारा फोर्थ लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगा निफ्टी को। अपर साइड में अगर निफ्टी जाती है तो 14,600 का हमारा पहला रेजिस्टेंस है, जो कि कल 14,602 का था, विच वाज अ फिबोनाची लेवल आल्सो, and 14,600 of course is a psychological level. So 14,652 is our second uh, resistance level, जो कि आज का हाई भी है। एंड अगर 14,652 टूटता फ्रेंड, देन 14,700 14,737 will be our two resistance level on the upside. So अगर हम रेंज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको जो रेंज दिखाई देती है वो दिखाई देती है 14,000 383 से 14,737 की रेंज दिखाई दी, काफी ब्रॉड रेंज है ये, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में हमको जो डाउन साइड में सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 32,450 का, सेकेंड है 32,295, थर्ड लेवल है 32,155 का, एंड फोर्थ लेवल है 32,000। सो 32,000 शुड बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। एंड बैंक निफ्टी अगर कल वापस बुलिश रहती है तो देन ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द सेशन विल सी कि इनके बाइसेस क्या हैं बेस्ड अपॉन द डेटा एंड द अदर फैक्टर्स, राइट। सो 32,680 हमारा पहला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि आज का हाई भी है, एंड 32,810 सेकेंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। थर्ड रेजिस्टेंस हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 33,000 पे। नाउ बैंक निफ्टी इफ closes about 32,680 or 650, then you will find Bank Nifty is in uncharted territory, and then you would see wild moves, wild up moves in Bank Nifty. Then you can expect. Otherwise, Bank Nifty is still in the distribution zone, जहाँ आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, राइट, लॉन्ग ट्रेड लेने से पहले। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम, क्योंकि कल ऑप्शन की एक्सपायरी है, तो शॉर्ट कवरिंग विच इज पार्टली जो शॉर्ट कवरिंग आज नहीं हुई वो कल होगी, तो दैट कैन ऑल्सो पुश द इंडाइसेस अपसाइड। नाउ अगर हम डेटा पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड, लेट्स लुक एट द ऑप्शन चेन, एंड व्हाट वी आर कंसीडरिंग इज अ 14 जनवरी को एक्सपायर होने वाली वीकली ऑप्शन चेन की बात कर रहे हैं। सिंस निफ्टी क्लोज एट 14,564, तो हम 14,550 को अपना एट द मनी मानेंगे, और एट द मनी के आसपास में वी विल लुक एट व्हाट काइंड ऑफ बेरिश एंड बुलिश पुट्स एंड पुट राइटर और कॉल राइटर ने क्या काम किया हुआ है, दैट्स व्हाट वी विल बी ऑब्जर्विंग एट दीज लेवल्स। नाउ इफ यू लुक एट 14,550, that emerges as a very strong support. We have got more than 1 million contract here, but interestingly उसके ऊपर भी almost 1.3 million contracts हैं। अगर market close होती 14,600 के ऊपर, so this will also emerge as a support. But at this point of time, as it is in the money, will not be considering it as a support, but it's encouraging to see the bulls are writing puts at even that level as well. Second level of support is emerging at 14,500, where we can see 1.3 million contracts as create किए गए हैं, overall 3.8 million contracts हैं, and that is also maximum OI, right? So maximum OI है, तो on downside 14,500 could be considered as the lower level. However, इसके नीचे 14,450 पे भी almost 2.7 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स नए आए हैं, और 1.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे 1.46 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट 3। अगर ये लेवल टूटता है, in that case 14,400 would be our lower level. As you can see that 2.9 million contract, यहाँ पर भी almost 3 million contracts है यहाँ पे, right? So 14,300 I'll be considering 14,400, sorry. So 14,400 को फ्रेंड्स मैं as of now लोअर साइड लूंगा, ऑल्दो 14,500 भी हमारा एक लेवल है, बट 14,500 इज टू क्लोज, राइट, एंड टुमारो बीइंग एक्सपायरी डे थोड़ा हमको केयरफुल रहना चाहिए, राइट, तो थोड़ा ब्रॉडर रेंज ले लेते हैं। एंड अगर मैं लोअर लेवल पे देखता हूँ फ्रेंड्स, तो काफी पुट की अनवाइंडिंग हुई, विच इज वेरी नेचुरल, बिकॉज यहाँ पे अभी जो प्रीमियम है वो कुछ खास रह नहीं गई। 2 रुपए की प्रीमियम के लिए कोई भी राइटर या सेलर जो है ऑप्शन का वो काम नहीं करेगा, राइट। सो ना अगर हम कॉल साइड में देखें तो वी लुक एट बेयर्स का आज क्या इमोशन था। सो
lot of unwinding at lower level, so bears are clear that market ये level पे नहीं जाने वाली है। जैसे कल हमने देखा था इवन 14,300 पे 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट से 14,400 पे 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, आज वहां पे भी काफी अनवाइंडिंग हुई है एंड ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे काफी कम हो गए कॉन्ट्रैक्ट। सो however 14,500 पे आज call writing हुई है, so that's bears, although these will not act as a resistance, but जैसे ही मार्केट इनके नीचे जाएगी तो they will emerge as a resistance levels, right? So हमारा resistance level जो strong emerge हो रहा है वो 14,600 पे हो रहा है, जहां पर कि आपको 1.6 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं आज फ्रेश, एंड ओवरऑल 4.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे जमा हो गए, राइट? दैट्स क्वाइट अ लार्ज। अगर ये लेवल टूटता है अपसाइड में, देन 14,650 इज द लेवल जहां पे 2.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है। अगर ये लेवल भी टूटता है तो देन नेक्स्ट है 14,700 का, जहां पे कि आप देख सकते हो 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट आज फ्रेश आए और 4.2 मिलियन ओवरऑल 4.242 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये हमारा ये लेवल पे मैक्सिमम ओ आई है, राइट? सो 14,700 की रेंज हमको यहाँ पे अपसाइड में दिखाई दे रही है। सो कल के लिए जो मुझे यहाँ पे डेटा पर्सपेक्टिव से रेंज नजर आ रही है 14,400 से 14,700 की रेंज है, 300 पॉइंट की रेंज है, एंड एक एक्सपायरी के दिन कोई बड़ी बात नहीं इस रेंज को वोलेटाइल स्विंग को देखना, राइट? इस ऑप्शन चेन सीरीज का पीसीआर है फ्रेंड्स 1.07, जो कि एक साइडवेज टू माइल्ड बुलिश बायस दिखा रहा है, राइट? सो यू मे एक्सपेक्ट टुमारो सम consolidation with wild swings or market range bound हो सकती है. That's what the data is saying. Of course, we'll look at other data aspects as well afterwards. But now before that, let's have a quick look at Bank Nifty option chain so that you get the pulse of what's happening in the Bank Nifty, right? So अगर हम Bank Nifty को देखें, so 32,574, so 32,600 को हम एट द मनी मानेंगे यहाँ पे, और एट द मनी के आसपास में देखेंगे कि हुआ क्या है। 32,600 में अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो ऑलमोस्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे इन द मनी, एनकरेजिंग है, काफी पुट राइटिंग हुई है, बट इम्पोर्टेंटली जस्ट जस्ट बिलो स्ट्राइक प्राइस 32,500 पे यहाँ पे मैसिव पुट राइटिंग हुई और वॉल्यूम भी मैक्सिमम है यहाँ पे 1.6 मिलियन का वॉल्यूम है, 8,47,000 कॉन्ट्रैक्ट नए आए और 1 मिलियन। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, राइट? अगर ये लेवल टूटता है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल है फ्रेंड्स वो है 32,000 का। अगर आपको कल की ऑप्शन चेन याद हो तो यहाँ पे 32,000 पे भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, 9.77 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, 9.77 लैक्स, राइट? तो 1 मिलियन के इक्विवेलेंट ही है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो रेंज है सपोर्ट की वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। सिमिलरली अगर पुट साइड में देखेंगे तो सॉरी कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे, दैट मींस बेयर्स ने थोड़ा हिम्मत हारी। हाउएवर इन द मनी अगर आप देखोगे 32,500 पे आज भी 1.3 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग, राइट? एकदम क्लोज है। उसके बाद भी थोड़ी 1.26 लाख कॉन्ट्रैक्ट नए राइड भी हुए और वॉल्यूम वाज द मैक्सिमम हियर। सो नाउ अगर हम और रेजिस्टेंस लेवल्स ढूंढते हैं तो 32,800 seems to be very strong level, 32,700 seems to be very strong level, 32,600 seems to be very strong level, क्योंकि 7 लाख 8 लाख 6 लाख ऐसे यहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट दिख रहे हैं, राइट? विच इज मच मोर देन द पुट साइड। हाउएवर जो 33,000 है दैट सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 1.1 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है आउट ऑफ मनी में, राइट? सो हम इसको मैक्सिमम ओआई लेंगे फ्रेंड्स, जो कि आउट ऑफ द मनी है, तो मैक्सिमम ओआई को रेजिस्टेंस लेंगे। और यहाँ पे जो 32,500, तो इससे हमको 32,500 से 33,000 की रेंज नजर आ रही है, जो ये दिखा रही है कि हमको कल की रेंज से बैंक निफ्टी की रेंज 500 पॉइंट ऊपर शिफ्ट होगी। ऑल्दो बैंक निफ्टी मोरलेस 200 प्लस पॉइंट्स की गेन किया आज, लेकिन ओवरऑल रेंज शिफ्ट होगी। इसका पीसीआर फ्रेंड्स है करीब करीब 0.91, कल का पीसीआर था, आज के लिए 0.90। सो मोरलेस although it is showing neutral to mild bearish bias, but with this bias itself bank nifty is able to move upside, so you can expect mild bullishness in bank nifty tomorrow, right? So and as I said कि निफ्टी में बहुत कुछ सेलिब्रेट करने के लिए है नहीं, बट बैंक निफ्टी में it has just touched today uncharted territory, and वो बोलते हैं ना कि अनचार्टेड जगह में अगर सांड
बिना रस्सी के तो किधर भी भाग सकता है, तो वैसे ही यहाँ पे शायद बैंक निफ्टी में देखने को आपको मिल सकता है। नाउ if you look at the other provisional data, FIs were a net buyer with 1,879 crore today, while as the DIs were net seller with a 2,370 crore in cash market in equities. So नेट अगर हम बात करें अभी तक ये महीने में 14,853 करोड़ की बाइंग एफ आई कर चुके हैं, वाइल एस डी आईज ओवरऑल नेट सेलर रहे 11,193 करोड़ की सेलिंग के साथ में इन जनवरी। सो एफ आई का पलड़ा ऑब्वियसली भारी है, सो स्मार्ट मनी डज मैटर, राइट। एंड ऑप्शन के फ्रंट पर अगर देखेंगे फ्रेंड्स, एफ आई प्रोज आर साइडवेज एंड रिटेलर्स आर एज यूजुअल माइल्ड बुलिश है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो एफ आई आर एक्सट्रीमली बुलिश विद ऑलमोस्ट 2.5 times प्रेशर on index future long side, while as pros, retailers and DIs at this point of time are a net seller in the index future. So that's kind of pressure in options and futures of indices. European markets and US markets right now are in consolidation mode. अच्छी खासी बढ़त ली है उन्होंने, और उसके बाद में वो थोड़ा some sessions obviously they need to rest, right? That's the nature of market, right? It cannot keep on going up. So environment wise अगर हम बात करें market के, तो RSI 81 पे है as of now, and there are divergences here. मार्केट में प्राइस ऊपर गई है, लेकिन RSI वहीं का वहीं है, 81 पे RSI इज ऑलवेज ओवरबॉट जोन में है। हालांकि हम RSI को थोड़ा डिफरेंटली देखते हैं, बट जैसे RSI 70 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली एक नोटिस में तो आता ही है। अगर हम डेली, वीकली और मंथली चार्ट की बात करें, स्टॉकेस्टिक्स उसमें देखें तो 90 के ऊपर है फ्रेंड्स, सो दैट मींस इट इज इन ओवरबॉट जोन, एंड ओवरबॉट जोन में correction or consolidation should not surprise you, as market is also witnessing the India VIX rising. Today it rose by 2% and it closed at 23.3, and yesterday also it rose 2%, day before almost 8%. So that's a matter of concern for bulls, and that's where you could see like सुबह gap up start होता है तो फिर वो sustain नहीं करता है, वहां पे profit booking start हो जाती है. But as long as market is sustaining, as long as Nifty is sustaining above 14,000, you can say market is in bullish mode, right? Similarly for Bank Nifty, we can say as long as Bank Nifty 31,800 के ऊपर है, Bank Nifty also is in a bullish mode. अगर हम ट्रेडिंग रेंज की बात करें, कल की ट्रेडिंग रेंज हमको 14,400 to 14,700 दिख रही है फॉर निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी के लिए 32,000 to 33,000 की दिखाई दे रही है। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, वी कैन डिवाइज अ प्लान फॉर ट्रेडिंग इंट्राडे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। सो हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स? अगेन, इफ निफ्टी स्टार्ट्स गैप अप at 14,650 or 14,700, consider that will be shorting opportunity for you, and your target will be 14,600, 14,525 or 14,470 तक भी, right? And अगर निफ्टी गैप डाउन चालू होती है, let's say at 14,380, 14,438, 14,470, then it will be excellent opportunity for you to go long. Of course, आप ORC को देखना ना भूलें, ORC ब्रेकआउट के हिसाब से आप लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड का कंफर्मेशन समझें। 14,525 से 14,600, ये 75 की रेंज आप नो ट्रेडिंग जोन समझें, और इसमें 45 मिनट तक वेट करें, मतलब 10 बजे से पहले ट्रेड न लें, ORC ब्रेकआउट होने दें, और आपका जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मे बी विद VWAP और विद सुपर ट्रेंड और विद बोथ, whichever direction ORC is breaking out, you can take trade in that direction. Of course, stop loss use करें, और mechanical stop loss use करें rather than अंदाज से, right? So that's how you can trade Nifty. And let's see Bank Nifty. Now Bank Nifty के लिए नो ट्रेडिंग जोन है हमारा 32,450 से 32,680 का, तो इसमें थोड़ा अवॉइड करें और हाफ एन आवर वेट करें ORC ब्रेकआउट के लिए। Now consider अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन स्टार्ट होती फ्रेंड 32,300 पे या 32,150 या 32,000 पे, then it will be buying opportunity for you ORC ब्रेकआउट पे with rising volume आप लॉन्ग ले सकते हैं। कंसिडर अगर बैंक निफ्टी गैप अप स्टार्ट होती है, चाहे 33,000 पे हो या 32,800 के आसपास में हो, देन यू विल गेट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी
Until which levels? Then in that case, 32,680, 32,450, 32,295 could be your targets on the downside, right? तो फिर ये support level target बन जाएंगे आपके लिए. And ORC with a rising volume is must for you initiating any trade, right? And stop loss and trailing stop losses are must if you are trading intraday. Now, if you are in futures, do hedge those futures with your options, either by buying put or call, or selling by put and call, and then sold put and call को भी आप you know put and call buy करके hedge कर सकते हैं, right? There are strategies which you will definitely need to learn on how to hedge your positions on a volatile day or on a range bound day, right? I hope, friends, with this you are getting a sense of confidence and you becoming profitable trader. uh, do write in the comment box of our YouTube videos that whether it's helping to go with the flow of the analysis what we are providing, or do you need more support so that you can be more profitable trader or more confident traders. Thank you very much for watching the video, and uh, to get latest information, do subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that whenever we upload any new video, you get notification. And yes, don't forget to share the videos with your friends and trading communities so that they can also get access to quality knowledge. Thank you once again for watching and liking the video. Signing off until the next video. Good luck, happy trading, happy investing, friends.